ওয়েলকাম শ্রী বিমল এডুকেশন চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানিয়ে এই ভিডিওটি পুরো দেখবার জন্যে অনুরোধ করছি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর আয়োজন করেছে এক দিবসীয় চাকরির পরীক্ষার কর্মশালা, ওয়ান ডে কোচিং ফর ইউপিএসসি এক্সাম, যার আয়োজন করেছে ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়, জয়গাঁ। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইউপিএসসি এক্সাম সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে আজকের এই আয়োজন। এখানে ইউপিএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন উইংস, ম্যাটেরিয়ালস এর পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আজকে খুব সুন্দর আলোচনা হয়, যার থেকে ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই উপকৃত হবে। আমি কথা বাড়াচ্ছি না, ভিডিওটি দেখলেই আপনাদের সেই অভিজ্ঞতা আপনারা পাবেন। ধন্যবাদ। আমাদের এই কলেজের সমস্ত আগামী দিনে কীভাবে আমাদের অনুষ্ঠান যাতে করে আমাদের তারা আমাদের আমরা ধন্যবাদ নিজেদেরকে সমপরিমাণ গড়ে তুলতে পারে। সেই জন্যই আজকের এই এক দিবসীয় কোচিং সেন্টার। और एक बात सारे बच्चों के लिए इस डिपार्टमेंट की ओर से बोला जा रहा है कि तुम लोगों के लिए टिफिन का भी बंदोबस्त किया गया है। इसीलिए प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद तुम सब यहीं से टिफिन लेके, चाय भी बंदोबस्त किया गया, चाय भी दिया जाएगा, वो लेकर चाय पीकर टिफिन लेकर फिर जाना, ठीक है? तब तक शांति बजाय रखो, शांति का माहौल बजाय रखो। स्मारक महाविद्यालय सहयोगिताय আজকের এই বিনামূল্যে আবাসিক কোচিং সেন্টারের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আমাদের অতিথিবর্গ ইতিমধ্যেই চলে এসেছেন। আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আজকের এই এক দিবসীয় আইএস আইপিএস হওয়ার কোচিং সেন্টারের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছে। ধন্যবাদ।
শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছে, শুরু হচ্ছে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে। একে একে আমাদের আজকে অতিথিবর্গ প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করলেন। सारे बच्चों लोगों को बोलना है तुम अपने अपने सीट पर बैठ जाओ। Now I would like to request এবার আমরা আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অতিথিবর্গকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবার জন্য আহ্বান করি। প্রথমেই আজকে সিআইএফএস পারভিন কাসওয়ান ডেপুটি ফিল্ড ডাইরেক্টর বক্সা টাইগার রিজার্ভ আলিপুরদুয়ারকে বরণ করে নিচ্ছি। এরপর আমরা বরণ করছি শ্রী দীপেন্দ্র সিং আইএস এডিএম এলআর। এবার বরণ করে নিচ্ছি শ্রী শ্রীমতী শেরিং সদেন দোপ্পা ডব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভ ডিস্ট্রিক্ট অফিসার অফ মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স আলিপুরদুয়ার। বরণ করে নিচ্ছি প্রিন্সিপাল অফ ননী ভট্টাচার্য স্মারক বিদ্যালয় ডক্টর অভিজিৎ কুমার দে। বরণ করে নিচ্ছি জয়েন্ট ভিডিও কালচারি শ্রী শিবলাল শর্মা মহাশয়। এইমাত্র শেষ হলো। Sri Nipendra Singh IAS, Additional District Magistrate and District Land and Land Reforms Officer, Sri Praveen Kaswan IFS, Srimati T.C. Dutpa WBCS Executive District Officer Minority Affairs, Sri Shiblal Sharma Joint PDO Kalchini Block, and our different officers, my esteemed colleagues and my dear students. It is a great pleasure and honor to welcome you all to the awareness camp to civil service coaching aspirants. Your active participation transform the event from a concept to reality in future, maybe near or maybe far. Once again, I welcome you all. We are delighted to have you here and hope to find this event both rewarding and memorable. Thank you. For his welcome speech. Now I request Sri Parveen Kaswan IFS, Deputy Field Director, Boxer Tiger Reserve, Alipurduar, to express his opinion as well as the experience before the students. नमस्कार सभी को। सबसे पहले हम हिंदी में बोलबो, ठीक है तो आपको मोटिवेट करना, क्योंकि जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि आप सभी लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिविल सर्विस का, तो आपको हम लोग कैसे मोटिवेट कर पाए ये हमें देखना है। और मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं एक मिर्जावाली गांव का एक नाम का गांव है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर, वहां से बिलोंग करता हूं। मैंने बीटेक किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में
उसके बाद में एक गेट नाम का पेपर होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। मैंने गेट ऑल इंडिया रैंक 191 से 2011 में क्लियर किया था। और उसके बाद में IISc बेंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद में मैं JNU में MPhil स्टूडेंट था। उसी दौरान मैंने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम लिखे। मैंने 3 बार सिविल सर्विस के इंटरव्यू दिए हैं और 2 बार मैं उनमें सेलेक्टेड हुआ। एक बार मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर किया और एक बार मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम क्लियर किया। फिलहाल मैं बक्सा टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा डेफिनेटली, आपकी डिस्ट्रिक्ट का है, मैं उसकी देखभाल करता हूँ, मैं उसका इंचार्ज हूँ वेस्ट डिवीजन का। सिंस आज जो है वो इस प्रोग्राम की शुरुआत है, इसलिए मैं कुछ चीजें आपसे साझा करना चाहूंगा जो हो सकता है कि आने वाले 1 साल में आपकी पढ़ाई लिखाई में कुछ चीजें मददगार हो, जो चीजें आपको मोटिवेट कर पाए। मैं भटकूं नहीं मेरी स्पीच से, इसलिए मैंने 4-5 पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन किए। मैंने अपनी यूपीएससी जर्नी आपको समझा दी है। मैं बताऊंगा कि यूपीएससी जर्नी कैसे होती है, क्या क्या उसमें प्रोसीजर्स होते हैं। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट जो होती है उसमें लेजिस्लेचर होता है और एग्जीक्यूटिव होता है। एक ब्यूरोक्रेसी होती है जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की देखभाल करती है। जब स्टेज पे बैठे हैं हम लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो हम लोग जो है वो अपने काम के दौरान बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और जो हमें काम दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, हम अपनी तरफ से उसको करने की कोशिश करते हैं। इसके ब्यूरोक्रेसी में जाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी सर्विस होती है, बहुत डिपार्टमेंट्स की सर्विस होती है, जिनमें से सोचिए कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस हुई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हुई, पुलिस सर्विस हुई, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हुई, रेलवे सर्विस हुई, रेलवे अकाउंट सर्विस हुई, डिफेंस सर्विस हुई। तो इस टाइप की बहुत सारी सर्विसेज होती है। अच्छा, जो आपको मैं अपने जो पिछले जर्नी है उसके हिसाब से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता सकता हूं जो मैंने जिंदगी में सीखे हैं कि अगर ये पॉइंट्स किसी स्टूडेंट में हो तो वो कोई भी एग्जाम क्लियर भी कर सकता है और एग्जाम ना भी क्लियर करे तो भी एक अच्छी जगह वो अपनी समाज में और गवर्नमेंट में बना सकता है। पहली जो चीज है वो है जो अक्सर ब्यूरोक्रेट्स में होती है या फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में होती है, वो है हैबिट ऑफ रीडिंग। तो आप लोग हो सकता है कि एग्जाम आप 1 साल बाद, 2 साल, 3 साल बाद दें। एक चीज कंसिस्टेंटली करते रहते हैं तभी वो लोग कामयाब होते हैं। आप अपनी रीडिंग हैबिट जो है उसको बरकरार रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए और अच्छी कंपनी में रहिए। देखिए कहते हैं ना कि आप क्या हैं, आई एम द एवरेज ऑफ 5 पीपल whom I am spending most of my time। मैं उन्हीं 5 लोगों का एवरेज हूँ जिनके साथ मैं सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता हूँ। तो इसलिए जो अपनी कंपनी है वो ऐसी रखिए जो खुद भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो लाइफ में तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपकी स्थिति जो इंप्रूव होती जा रही है, भले पढ़ाई की हो या भले जीवन की हो। और इस जर्नी के दौरान जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत लंबी जर्नी है। गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जाना, सिलेक्ट होना बड़ा मेहनत का काम है, तो इसमें स्ट्रेस भी आता है। तो आप हमेशा सक्सेस स्टोरीज जो है लोगों की वो पढ़ते रहिए। सक्सेस स्टोरीज जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े महान लोगों की पढ़े, आपके शहर में भी कोई आदमी कामयाब हो सकता है, आप उसकी सक्सेस स्टोरी पढ़िए। आपके परिवार में कोई आदमी हो सकता है किसी ने MBBS में एडमिशन लिया हो। मैं थोड़े दिन पहले टी गार्डन में गया था। हमारे यही अलीपुर द्वार के टी गार्डन की 4 लड़कियां MBBS में सेलेक्ट हुई है। वो सक्सेस स्टोरीज है। अब उन सक्सेस स्टोरीज को पढ़िए जो लोकल की है, जो हम में से निकले हुए हैं। मैंने अपना जो परिचय शुरू किया, मैंने वहां से जोर क्यों दिया कि मैं खुद एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ
और मेरे पिताजी जो है फार्मर है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग उस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप भी तो छोटे से टाउन से हो, आप कौन से मेट्रो से हो, लेकिन अगर कोई मेरे जैसा आदमी मतलब आज इस जगह आया है कि आपको लेक्चर दे पाए, तो डेफिनेटली आप लोग भी जा सकते हो उस जगह। तो ऐसे लोगों की आप कहानियां पढ़िए, ऐसे लोगों के बारे में आप जानिए कि वो लोग कैसी कंपनी रखते थे, वो लोग क्या पढ़ते थे, उन लोगों ने स्टडी कब स्टार्ट किया अच्छे से। आई नो स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में डिसिप्लिन जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। कोई डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहता, हम भी नहीं रहना चाहते थे, कोई ऐसे लाइन में बैठना नहीं चाहता, ठीक है, उसका भी समय होता है। लेकिन आप जो आपका जो टारगेट है उसको हमेशा याद रखिए। 2-3 चीजें मैं बताई है, रीडिंग हैबिट अच्छी रखिए आप, और कंसिस्टेंसी। देखिए बहुत सारे लोग ना नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंस जो है वो लक के ऊपर है, बहुत लोगों का दिमाग तेज चलता है, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है ना वो एक्वायर्ड एक स्किल है। जो स्मार्टनेस काम नहीं करेगी, इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा, कंसिस्टेंसी काम करेगी। आप एक चीज अगर बार बार साल 2 साल करते हैं तो वो चीज कामयाब करेगी। आपने तो बचपन में कहानी भी पढ़ी है ना, वो खरगोश वाली और कछुए वाली। उसमें क्या होता है, खरगोश इंटेलिजेंट मतलब एक ऐसी स्किल होती है जो उसके पास पहले से है बाय वेरी नेचर, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होता। कछुआ कंसिस्टेंट होता है, वो रुकता नहीं है, स्लो होता है, ठीक है, उसने एक्वायर की वो स्किल कंसिस्टेंसी की, लेकिन वो जीत गया। वैसे ही अगर आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स अपने आसपास के देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लोग हो सकता है इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन वो कंसिस्टेंट थे, वो करते रहे जो उनको करना था। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वो मेहनत करते रहे, उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा उसका। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्मार्टनेस विल नॉट डू, इंटेलिजेंस विल नॉट डू, कंसिस्टेंसी विल डू। मैं एग्जाम्पल हूँ, दीपेंद्र एग्जाम्पल है, वो खुद अपनी स्टोरी बताएगा, तो आप समझ पाएंगे। जितने लोगों से मैं मिला हूँ सबकी सेम स्टोरी है, जो रुका नहीं वो उसने अचीव किया। और अगर आप अगले 2 साल या 1 साल कड़ी मेहनत करते हैं तो आई गारंटी यू कि हो सकता है कि जो सर्विस आप चाहते हो वो नहीं मिली, लेकिन आप एक अच्छी जगह चले जाएंगे। दिस इज व्हाट आई कैन टेल, बिकॉज वी आर एग्जाम्पल। अच्छा, इसके बाद में जो वैसे तो आप स्टडी के दौरान समझेंगे कि क्या प्रोसीजर है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। यूपीएससी की स्पेशली, यूपीएससी देखिए बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, वो एनडीए में करवाती है, वो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, सिविल सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के एग्जाम्स, वो बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है सिविल सर्विस का, जो यहाँ पे यूपीएससी लिखा हुआ है, लेकिन यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो लेट्स टॉक अबाउट सिविल सर्विस एग्जाम। इसके 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। और आगे वाली स्टेज पे आप तभी पहुंचेंगे जब आप पिछली स्टेज का एग्जाम क्लियर करते हैं। लगभग 10 से 12 लाख लोग हर साल प्रीलिमिनरी के फॉर्म भरते हैं, जो जैसा कि मुझे याद आ रहा है, मेरे टाइम पे भी यही नंबर था, तो अभी भी शायद 1 लाख ऐड कर दीजिएगा। 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। और पहला एग्जाम जो होता है प्री का होता है। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होता है जनरल स्टडीज का और दूसरा पेपर होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले हुआ करता था, अभी पैटर्न चेंज हो गया है। तो एक पेपर जो है जनरल स्टडीज का और एक सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ पास करना है, क्वालिफाइंग इन नेचर। लेकिन प्रीलिमिनरी जो पेपर रहेगा जनरल स्टडीज का, जिसमें कि आप देखिए जीके परखी जाएगी, वो जो है वो आपको रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। रैंकिंग मींस कि आपको जस्ट इमेजिन कि इस साल 1000 सीट है, जस्ट एग्जांपल देता हूं कि यूपीएससी जो है वो सीएससी के अंदर 1000 सीट निकालती है, तो लगभग 12 टाइम्स उन्होंने 1000 सीट में 12000 लोग उन्होंने सेलेक्ट करने प्रीलिमिनरी से। तो पहले जो 12000 10 लाख में से होंगे वो सेलेक्ट होंगे। दूसरी स्टेज है आपकी मेंस की। मेंस में काफी पेपर होते हैं, वो होते हैं आपके ऐसे का एक पेपर होता है, जनरल स्टडीज के उसमें 4 पेपर होते हैं। इनके सिलेबस जो है वो सारा वेबसाइट पे अवेलेबल है।
और आई थिंक आपको यहाँ से एकेडमिक भी प्रोवाइड करेंगे वो सिलेबस। और हर एक पेपर का अलग अलग सिलेबस होता है। जैसे आप जनरल स्टडीज बोर्ड देखिए, एथिक्स का पेपर होगा, वन में सोचिए आप इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री होगा, इस टाइप का चारों उसमें ऑप्शन रहेंगे और चारों में अलग अलग सिलेबस रहेगा। फिर आपका ऑप्शनल पेपर 1 और 2, ये आपको ऑप्शनल कोई चूज करना होगा जिसमें कि आप सोचते हैं कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आफ्टर ऑल इट्स अ कंपटीशन, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। खास बात ये है कि आपको बाकी सबसे अच्छे मार्क्स लाने हैं। 33% आ गए, 50% आ गए, वो टारगेट नहीं है आपका, आपको बाकियों से अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, जितने भी लोग कंपटीशन में। इसलिए कंपटीशन टफ है। ऑप्शनल के 2 पेपर हुए, फिर आपका एक लैंग्वेज पेपर इंग्लिश और हिंदी होगा। ये दोनों भी क्वालिफाई है, इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, मार्क्स सिर्फ ऊपर वाले पेपर से जुड़ेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि 1000 सीट्स लगभग होगी, तो 10 लाख में से 12,000 लोग मेंस लिखेंगे, पहले 12,000। फिर इसके बाद आएगा इंटरव्यू स्टेज, जो कि 275 मार्क्स रहेंगे, जिसमें कि यूपीएससी इसको इंटरव्यू नहीं बोलती, इसको बोलती है वो पर्सनैलिटी टेस्ट। दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज बट दे आर असेसिंग योर पर्सनैलिटी। इंटरव्यू के लिए वो लोग 2.5 टाइम्स लगभग लोग बुलाते हैं। 1000 सीट है तो 2,500 के लोग करीब वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। पहले स्टेज में 10 लाख से 12,000 है, 12,000 से 2,500 होंगे, तो 2,500 से लास्ट में 1,000 लोग सेलेक्ट करेंगे। So this is सिविल सर्विस का बेसिक पैटर्न जो है। और 1000 जो सिलेक्ट हुए वो हमारे जैसे लोग होंगे। फिर उनको अलग अलग उनकी रैंकिंग के ऊपर उनको अलग अलग जॉब दी जाएगी। फिर उनके अगर ऑल इंडिया सर्विस है तो उनको कैडर दिए जाएंगे, स्टेट्स दिए जाएंगे। जैसे कि मेरे को इंडिपेंडेंट को वेस्ट बंगाल मिला है, बिकॉज़ इट वाज आवर चॉइस, हमारी चॉइस खुद थी। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो भी जो रैंक और जो चॉइस उनके हिसाब से आपको स्टेट मिलते हैं। देन जैसे हम नॉर्मली गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, वो गवर्नमेंट सर्विस में पार्ट करते हैं। तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। मैं निबंधन को बोलूंगा कि आगे वो टेक ओवर करेगा, आगे की चीजों को आपको समझाएगा। Thank you. Superintendent Captain IAS student Bhavsha Tiger Reserve for his report. Sri Nitendra Singh IAS Additional District Magistrate at the District Land and Land for his delivery stage. तो समझ में आ रही है? बांग्ला मिक्स करके बोलना है कि हिंदी सही है? ঠিক আছে, তাহলে আমি উনি রিকোয়েস্ট করতে স্যার বাংলা হিন্দি মিক্স করে আমরা আমাদের কথাটা বলবো। तो we'll mix both हिंदी and बांग्ला, इंग्लिश समटाइम्स, ठीक है? नमस्कार, मेरा नाम निपेंद्र सिंह है। जैसा कि सर ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया आपको, मैं 17 बैच का आईएएस हूँ। अभी करेंटली आपका अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में एडीएमएलआर यानी लैंड रिफॉर्म्स का डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच सर ने और गाइड करने वाला ब्रॉड पर्सपेक्टिव कमीशन ने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर किया है, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट एस्पेक्ट। उससे ज़्यादा मेरे को अभी आपसे जानना है कि आप लोग में से कितने लोग का भी ग्रेजुएशन चल रहा है या कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार हाथ उठाइएगा, हाथ उठाना है, बोलना नहीं है। ग्रेजुएशन आइदर ऑनगोइंग या फिर कंप्लीटेड, बाकी सारे 11-12 में हैं। और क्या कर रहे हैं अभी आप? ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो चल रहा है, तो ग्रेजुएशन ऑनगोइंग है ना, सबका ग्रेजुएशन ऑनगोइंग है, ठीक है? इससे पहले कभी भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी है? किसी ने करी है? हाथ उठाए। एसएससी आपने और आपने एसएससी छोड़ के किसी ने कुछ डब्ल्यूबी किया या यूजीसी ने कब दिया था? रिजल्ट वेटेड है कि आ गया? हो गया, कांग्रेचुलेशन। क्लैप फॉर अस। तो मैंने ये क्यों पूछा, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप एसएससी बोलिए, डब्ल्यूबीसीएस बोलिए, नेक्स्ट यूजीसी बोलिए, क्या जरूरत क्या होती है? जैसे सबने बोला कंसिस्टेंसी,
मैं अभी आज पहला स्टेप आप सभी ने लिया है, यू ऑल हैव कम हियर, सो पीपल हु आर आउटसाइड द हॉल, उनसे यू हैव ऑलरेडी गेन द एज कि आज आप कम से कम सेमिनार में अटेंड करने आए हैं। जो लोग नहीं आए देर से फाइंडिंग देयर वेज, उनको कुछ और लाइसेंस चाहिए, उनका गोल कुछ और है, लेकिन आपने कम से कम अपना माइंड बनाने की तो सोची कि मैं यार गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाऊंगा, वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, डब्ल्यूबीसीएस हो, कुछ भी हो, कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट में नौकरी चाहिए, मेरे को सर्विस चाहिए, इसलिए मैं तैयारी करूंगा। तो कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, पहला स्टेप आपने ले लिया है। तो बेसिकली बिग चीयर फॉर यू ऑल, अपने लिए क्लास करिए, यू आर सॉरी फॉर दी हमने बोला हम लोग एक मीटिंग लगाते गए थे, इसलिए वी कुड नॉट कम। एग्जाम का फॉर्मेट सर हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट। इसके बाद आपको चाहिए, एवरीबॉडी हैज दिस स्मार्टफोन, सबके पास स्मार्टफोन उठा के मोबाइल अपना रील देखते থাকে सारा दिन, जितना रील टाइम ना इन्वेस्ट করে একটু ইউটিউবে গিয়ে यूपीएससी রিলসটা দেখে और আপনার নলেজও বাড়বে, আপনি জানতে পারবেন এক্সামের কি আছে কি নেই। अब এখানে তো গভর্নমেন্টের একটা আমরা প্রোগ্রামে আজকে আছি, আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যারা যারা ইচ্ছুক, those who want to prepare but because of want of proper guidance, proper books, proper environment পড়তে পারে না। आवाज सुना है नहीं? इतनी देर में आपने बोला क्यों नहीं मेरे को कि मैं फालतू चिल्ला रहा हूँ, यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, अच्छा तो मैं बोल रहा था कि ये आज सेमिनार क्यों कर रहे हैं हम लोग, कि ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कोचिंग नहीं मिलेगा, प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते, खुद से आप तैयारी नहीं कर सकते, सब कुछ अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, सबके हाथ में फोन है, कोई वीडियो शूट कर रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई टीवी देख रहा है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, फ्री इंटरनेट, अब इसको यूज करके आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपको ये एनवायरनमेंट, मतलब आज अराउंड 300 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, आई हैव बीन टोल्ड, तो ये एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जैसे मैंने बोला कि कंपनी का एवरेज हो आप, मतलब जिसके साथ तुम उठते बैठते खेलते कूदते हो, वो उनमें से हो सकता है यू आर द स्मार्टेस्ट, लेकिन यू आर द स्मार्टेस्ट अमंग द फोर, उसके बाहर और 400 लोग खड़े हैं, क्या उसमें आप स्मार्टेस्ट हो, वो जानने के लिए यू नीड अ क्लासरूम सच एज दिस, जहाँ पे यू कैन कंपेयर योरसेल्फ, कि मतलब तुम्हारे बगल वाला बच्चा हो सकता है यू थ्री आर फ्रेंड्स, उसके पीछे वाला तो दोस्त नहीं है, लेकिन तुम एक जगह तुम लोग सब लोग आए हो, इसका मतलब यू आर लाइक माइंडेड, यू आर कंपीटिंग फॉर द सेम एग्जाम, एक एग्जाम के लिए यू आर ट्राइंग टू मेक एफर्ट्स। So the starting point is getting a mental orientation, जैसा कि सर ने बोला कि कोई भी एग्जाम हो, WBCS हो, UPSC हो, आपको सबसे पहले जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। हम लोग क्या मिस करते हैं, हमारा सिलेबस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ा, बायो पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, उसके बाद किसी तरह रट के रोड लर्निंग करके एग्जाम में लिख के नंबर ले आया सर 90% आए, 80% आए, उसके बाद ट्वेल्थ के बाद पूछा गया कि क्या करना है, वो साथ भी ब्लैंक है। तो क्या मिस कर गए हम लोग, हमने सब्जेक्ट्स तो पढ़ लिए, लेकिन सराउंडिंग में क्या चल रहा है, जैसे पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वो बहुत और इम्पोर्टेंट जॉब है आपको, क्योंकि वी आर रिपब्लिकन, तो मतलब हम वोट के बेसिस पे डेमोक्रेसी पे चलते हैं, तो हमें वो समझना भी जरूरी है। बैंक कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है घटाता है, रेपो रेट बढ़ता घटता है, गोल्ड प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, ये सब हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज़ेस, न्यूज़ मैगजीन, ये सब पढ़ना है। अब न्यूज़पेपर जब हम यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए बात करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि एंड टू एंड आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट पेज तक की हेडिंग पढ़नी है। यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि इसमें क्या रेलेवेंट है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल बॉलीवुड न्यूज़ आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, स्पोर्ट्स टू एन एक्सटेंट जरूरी है, लेकिन मोर लेस यू कैन स्किप इफ यू, आपका पर्सनल इंटरेस्ट है आपका फुटबॉल में, सॉकर में, फीफा में, क्रिकेट में, यू कैन डेफिनेटली डू इट, अदरवाइज दैट कैन आल्सो बी स्किप। पॉलिटिकली कोई किसी को स्टेटमेंट देता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट पॉलिटिकल चेंजेस कुछ होते हैं, कोई लेजिस्लेचर में बिल पास हुआ, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, वो सब आपको पढ़ना है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके पीछे का आरबीआई का क्या रीजन था, ना कि उसमें राजनीति जो चल रही है कि एक पार्टी कुछ बोल रहा है, दूसरा पार्टी कुछ बोल रहा है, पार्टी का जवाब आपको क्वेश्चन आंसर लिखने से नंबर नहीं दिलाएगा, लेकिन आरबीआई गवर्नर ने क्या बोला है वो लिखोगे तो नंबर मिलेगा। तो व्हाट आई नीड टू से, न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ना है, इस पे आपको एन नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे,
तो शुरू करने के लिए सबसे पहला हैबिट बनाइए कि रेगुलरली करंट अफेयर्स पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है या मैगजीन पढ़ना है, या फिर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्री में वीडियो लेक्चर डालते हैं, 1 घंटे 2 घंटे का न्यूज़पेपर का वीडियो बना के लोड कर देता है यूट्यूब पे। मैं नाम नहीं लूंगा किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, लेकिन काफी हैं, गूगल सर्च करने से आपको मिल जाएगा। तो उसी यूट्यूब को, उसी फोन को आप कैसे अपने गोल ओरिएंटेशन में यूज कर सकते हो, पहला वहां से स्टेप शुरू करो। जैसा कि सर ने बोला, ये सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, सिलेबस क्या है, एक बार खोल के देखिए। जो लोग कॉलेज में हैं, आपका कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होगा, एक ऑप्शनल लेना होता है। जरूरी नहीं है कि सेम सब्जेक्ट ही आपका ऑप्शनल हो, आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हो। जैसे मेरा ग्रेजुएशन था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मेरा ऑप्शनल था साइकोलॉजी, तो दोनों का कोई मेल जोल नहीं है, लेकिन मैंने साइकोलॉजी क्यों लिया? एक मौका था मेरे पास एक नया सब्जेक्ट सीखने का, प्लस फ्रैंकली स्पीकिंग इट वाज अ लेसर सिलेबस सब्जेक्ट जो 3-4 महीने में मैं कवर कर सकता था। वेयरएज अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग खुद उठाता तो 13 सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं, जिसको पढ़ने के बाद मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता रादर देन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो कैसे आपका भी रीजन हो सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट लोगे आप। तो ये सब जब आप एडवांस करोगे ना, आफ्टर दी जीएस वाला क्वेश्चन इज क्लियर। रेगुलर আপনারা নিউজপেপার পড়তে থাকলে, আপনার ম্যাগাজিন দেখতে থাকলে, তারপরে যেটা স্টেপটা আসবে তাহলে হবে অপশনালটা কি নেব, কোথায় থেকে পড়বো, কি পড়বো, ওটার জন্য আজকে এটা আমরা কোচিং ইনস্টিটিউশনে যেটা আমরা গভর্নমেন্ট থেকে আমরা অর্গানাইজ করছি, আপনাদেরকে একটা এনवायरमेंट প্রোভাইড করার জন্য কি যেখানে আপনি এসে আপনার কোন বই পড়তে হবে, বুক লিস্ট, কোন ম্যাটেরিয়াল পড়তে হবে, ওটা ভিডিও লেকচারস, ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনস এইগুলো পাবেন, সম্পূর্ণ ফ্রি অফ কস্টে পাবেন, কোনো টাকা লাগবে না। কি লাগবে? শুধু পেপার। আপনার যদি নিজে মন করে আর নিজে ইচ্ছা আছে তাহলে আপনি করতে পারেন। এরকম কোনো বিরাট আমি পাহাড় চড়তে বলছি না, आई एम नॉट आस्किंग यू टू क्लाइंब एवरेस्ट, इट इज अ मच डूएबल एग्जाम, हम लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इट्स अ सिंपल गेम ऑफ कंसिस्टेंसी, कितनी बार आप पढ़ सकते हो, कितनी बार भी प्रोड्यूस कर सकते हो। पहले तो दिमाग में वो हटा देना कि बहुत बड़ी चैलेंज है। एसएससी आपने अटेम्प्ट किया, यूपीएससी का क्यों नहीं सोचा? कोई बता सकता है? जितने लोग ने एसएससी दिया हाथ उठाइए एक बार, अभी बताया था। यूपीएससी का क्यों नहीं ट्राई किया? बोलिए बोलिए। इंफॉर्मेशन नहीं था, ठीक। आपको क्या रीजन था? बोलिए, आई कैन हियर, मतलब जोर से बोलिए। देखिए मत, आपका रीजन नहीं, सबका रीजन। आपने तो कम से कम एसएससी दिया है, बाकी ने तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं दिया अभी तक। तो बोलिए आपने क्यों नहीं दिया यूपीएससी? पता नहीं था, पता नहीं था, ठीक है। तो कम से कम आज आपको पता लग रहा है। ये एग्जाम से सर ने जैसा बताया कि काफी सर्विसेज के लिए एग्जाम होता है, सिर्फ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस ऐसे नहीं है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। हो सकता है आपका किसी और में इंटरेस्ट हो, इनकम टैक्स, कस्टम एक्साइज, रेलवे, ऑडिट अकाउंट्स, आपका डिफेंस सर्विसेज, तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें आप कभी भी गूगल करना, अपने को 23 सर्विसेज 22 सर्विसेज दिखा देगा, जिसके लिए एक ही एग्जाम देते हो आप, सिविल सर्विसेज एग्जाम। प्लस एग्जाम ना भी क्लियर हो, काफी लोग देते हैं, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5 एग्जाम देने आते हैं, 5 लाख, उसके बाद फिर शॉर्टलिस्ट होते हुए मेंस के बाद 10,000, फिर प्रीलिम्स, ऐसे करके एंड में 1000 बच्चों की लिस्ट बनती है। उन 1000 के बाहर भी जो लोग होते हैं वो क्या इनकॉम्पिटेंट है? कभी नहीं। उनने इतना पढ़ लिया होता है, आपने खुद अपने आप को देखोगे कि जो आप आदमी थे 1 साल पहले, यू आर चेंज एज अ पर्सन। आपको कुछ ज्यादा पता है सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। अब आपको सिर्फ जो बुक में पढ़ाया गया इंग्लिश में, साइंस में, वो नहीं पता, उसको छोड़ के भी सब कुछ पता है। देश दुनिया में क्या चल रहा है, पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं, सोने के दाम ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होता है, पैरामिलिट्री क्या होती है, एसएसबी और आर्मी में डिफरेंस क्या है। आपका क्योंकि जयगांव में आप लोग देखते हो कि इधर एक आर्मी का इंस्टीट्यूट है, बाकी उधर एसएसबी है। तो ये सब आप ऐसे ही अपने आसपास के बारे में अवेयर हो जाओगे। तो इनकेस आप एग्जाम ना भी निकले तो आपको एडवांटेज क्या मिल रहा है? यू आर अवेयर, मच अवेयर सिटीजन। और डेफिनेटली उसके साथ जितने और एग्जाम्स हैं आपके, एसएससी, डब्ल्यूपीसी, आप सबके लिए एलिजिबल हो। ये सारी गवर्नमेंट्स ने अपना पैटर्न सेम कर लिया है यूपीएससी। ऐसा नहीं है कि आपको डब्ल्यूपीसीएस देने के लिए अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा, सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सब्जेक्ट्स अब हिंदी भी, इनका मदर टंग हिंदी है, इंग्लिश है, दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन डब्ल्यूपीसीएस सिलेबस। पहले नहीं था, पहले बांग्ला था। तो ऑनरेबल सीएम हैज included these languages as well, आईसीटी तक इंक्लूड कर दिया गया है इन डब्ल्यूपीसी सिलेबस। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? टू गेट अ एनेबलिंग एनवायरनमेंट।
इसके बाद जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, आप लोग मोटिवेटेड हो इसलिए आज यहाँ पे आए हो, 2 घंटा वेट किया, अभी तक भागे नहीं, मेरी बात सुन रहे हो, चिल्ला नहीं रहे, सवाल नहीं पूछ रहे, इसका मतलब यू आर सिंसियर इनफ, मोटिवेटेड इनफ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। आई विल नॉट स्पीक मच। इसके बाद वी ओपन द फ्लोर फॉर डाउट्स। किसी को कुछ क्वेश्चंस है, सर हैं, मैं हूँ, आप पूछ सकते हैं। एग्जाम के बारे में और जानना है, सर अभी तक पता नहीं था, फॉर्म कहाँ भरना है, कैसे भरना है, वो भी पूछ सकते हैं। कोई और जिसने प्रिपरेशन कर रखी हो, SAT-SC हम लोग ने एक एग्जाम कराया था, किसी ने गूगल फॉर्म भरा था उसका, अलीपुरद्वार यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ था, आप में से किसी ने उसका एनरोलमेंट किया था? सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट UPSC बोल के अभी एडमिशन हो रहे थे, किसी ने नहीं भरा? नहीं। तो वो भी एक इंस्टीट्यूट हमारा ऑलरेडी चल रहा है, अलीपुरद्वार जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट 50 स्टूडेंट्स का बैच है वो। तो वो उसको कौन कोचिंग दे रहा है? दिल्ली से कोचिंग इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट ने टाई अप कर रखा है, उनके प्रोफेसर जो दिल्ली में पढ़ाते हैं वो ही सेम चीज ट्रांसमिट होती है यहाँ पे, और आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो अब आज फिर से नेक्स्ट बैच खुलेगा, अभी 23-24 वाला बैच चल रहा है। इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड आप तैयारी करना चाहते हो नेक्स्ट बैच में, आप भी एंटर कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आई लाइक टू क्लोज माय सो कॉल्ड स्पीच। अभी इट इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। किसी को कुछ डाउट है, डू नॉट हेजिटेट। दिमाग में ये मत सोचना कि सिर्फ मेरा ही डाउट है या मैं पूछ लूंगा तो बाकी लोग मेरे पे हंसेंगे, मैंने कोशिश करी कि मेरा नहीं हुआ। नहीं होता है, 99% लोगों का नहीं होगा एक बार, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप ट्राई करना छोड़ दो। उसका मतलब ये है कि ठीक है मेरा 80% प्रिपरेशन हुआ है, नेक्स्ट ईयर दूंगा 90% हो जाएगा, फिर उसके बाद दूंगा 100% करके, उसके बाद जैसे सर ने बोला लक सबसे बड़ा फैक्टर है। हमारा सिलेक्शन हो गया तो हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमारा देश ऐसा नहीं है, हमसे कई ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन वो जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सर्विस के थ्रू ही सबसे अच्छा किया जा सके, सर्विस के बाहर रहेंगे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से तरीके हैं जिससे यू कैन डू मच लॉट फॉर योरसेल्फ एज वेल एज द सोसाइटी। तो ये दिमाग में हमेशा रखना, क्योंकि जब भी तैयारी शुरू करते हो उसके 3-4 दिन एक डिप्रेशन फेज आता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कोई काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, मेरा कैसे होगा, व्हाट एक्स्ट्रा डू आई हैव, ये सब दिमाग में आएगा। लेकिन उसको सेट असाइड करके एक बार अपने आप को ये समझाना, एक बार एग्जाम देके तो देखें, पहुंचे तो नहीं होगा तो बाद में देखेंगे। एक बार एग्जाम में बैठूंगा तो मैं पहले ही जंग छोड़ के भाग गया मैदान की, लड़ते ही नहीं है, भाग जाते हैं तो तुम हार गए ऐसे ही। एग्जाम में देख के तब हारना तो ठीक है, कम से कम लड़े तो वहां तक। तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। बाकी I would like to thank you all for coming here. If you have any questions and doubts, please ask. Thank you. Thank you very much, ADM Land and Reforms Alipurdwar, for his valuable speech on the auspicious occasions of this program. And I would like to request to all of our students, this is the questionnaire method. I think so you may ask any question, any doubt regarding this program also. So directly our honorable guest is sitting there. You may ask any question. कोई भी क्वेश्चन तुम लोग इसी मंच पर बैठे हुए हमारा गेस्ट लोग जो बैठे हुए हैं उन सब से पूछ सकती हो। कोई डाउट जो तुम्हारा मन में है आने वाला एग्जाम के लिए, इस तरह से UPSC का बहुत सारे एग्जाम जो सर लोगों ने बताया इस मंच पर तुम पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ঠিক আছে না? ঠিক আছে। দেখো তো ঠিক আছে। सबसे पहले तो मैं हमारे जयगो कॉलेज में आए हुए जितने भी आदरणीय सर लोग हैं सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत जनाता हूँ। और सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो हम लोग UPSC की तैयारी के लिए जो आपने बोला जो CSET का जो पैटर्न होता है, वो CSET के लिए तैयारी करने के लिए कौन से पुस्तक बुक पढ़ने से बेहतर होता है? और जो मैंने जो इसी के लिए मैंने कॉलेज इतना देरी से एडमिशन किया सर, और जो मेरा हिंदी लैंग्वेज है,
हिंदी में मैं एनसीईआरटी का बुक ऑर्डर किया था सर, सब आया, लेकिन जो हिंदी का जो लिटरेचर जो हिंदी होते हिंदी, मैं हिंदी सब्जेक्ट लिखूंगा बाद में, वो हिंदी के लिए जो हिंदी लिटरेचर का बुक नहीं आया। बाद में सब ऑल सब्जेक्ट का आया और सीसीएम का और ये हिंदी का बुक नहीं आया। यही मेरा थैंक यू सर। अच्छा, आवाज सुन पा रहे हैं? पीछे तक जो लोग बैठे माइक यूज नहीं कर रहे, ठीक है? नहीं सुन पा रहे? आज जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने मोबाइल नंबर लिखा था, वो व्हाट्सएप नंबर है, तो मैडम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग का एक ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप पे। जैसे उनने पूछा सीसेट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, बुक लिस्ट चाहिए आपको, तो ऑलरेडी जो बुक लिस्ट वैसे नेट पे सर्च करके मिल जाएंगे, एक ऑथेंटिकेटेड बुक लिस्ट हम वहाँ पे पोस्ट कर देंगे। सीसेट के लिए क्या पढ़ना है, पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, आपका हिंदी वाला डाउट था कि सर हिंदी की बुक्स नहीं आई है, तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आप उस ग्रुप पे डालते रहना, तो हम लोग भी इस ग्रुप में रहेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे क्लियर करते रहेंगे। मटेरियल का कोई अगर शॉर्टेज है, आपको एनसीईआरटी बुक्स नहीं मिल रही हैं, बाकी नहीं मिल रही हैं, तो भी आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। दिल्ली के कुछ बुक स्टोर्स हैं जो कुरियर कर देते हैं, यहाँ से उनको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दो, वो तुम्हें कुरियर से सारी बुक्स भेज देंगे, तो वो उनका भी हम नंबर उस ग्रुप पे शेयर कर देंगे, तो सबको लेके व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। आपका कोई भी डाउट है, ऑलरेडी हमारा एक द्वार दिशा बोल के ग्रुप चल रहा है, उसमें भी कुछ लोग होंगे, जो लोग नहीं है आज वाले ग्रुप से ऐड करेंगे, ठीक है? সবাইকে নমস্কার স্যার। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যেটা কি ইউপিএসসি তে আপনি বলছেন যে খালি ইংলিশ আর হিন্দি কম্পালসরি, তো আমরা যদি আমি তো ইংলিশ অতটা পাই না আর হিন্দি তো পাই না, তাই এর কোনো প্রসেস আছে যে আমি বাংলাতে বা অন্যান্য ভাষাতে যে পরীক্ষা দেব দিতে হবে? হিন্দি কম্পালসারি নয়, আমি যখন বলছিলাম ইংরেজি ডেফিনেটলি একটা পেপার আসবে, যেটা বলে এসএ পেপার, ওটা আপনাকে পড়তে লাগবে, लेकिन বাংলাতে বাকি পুরো পেপারটা আপনার বাংলা মিডিয়ামে লেখা যায়, পড়া যায়, আর হিন্দি দিতে হবে না। কোশ্চেনটাও কি বাংলা সাইডটাও বাংলায় আসবে, আনসারটাও আপনি বাংলায় লিখবেন। অল জিএস অল অপশনাল পেপার উইল বি ইন বেঙ্গলি। আমাদের ব্যাচমেট আছে শান্তনু বালা, উনি বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকেই পড়েছেন, এখানে কলকাতা থেকেই পড়েছেন, নর্থ চব্বিশ পরগনা ওনার বাড়ি, পুরো বাংলা মিডিয়ামে কোয়ালিফাই করেছেন। হিন্দি কম্পালসারি নয়, ইংরেজি এসএ পেপার যেটা আমরা ডিসকাস করলাম কম্পালসারি আছে, খুবই স্ট্যান্ডার্ড পেপার मतलब আছে, मतलब 10 স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিফাইং টাইপের, ওটা করতে লাগবে, প্লাস একটা এসএ পেপার থাকে। এই ছাড়া হিন্দি পড়তে হবে না, বাংলাতেই কোশ্চেন আসবে, বাংলাতেই উত্তর দেবে, থ্যাংক ইউ ইভেন ইন্টারভিউ অলসো বাংলাতে। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो कोचिंग क्लासेस जो स्टार्ट होंगे इसके लिए कुछ एग्जाम्स वगैरह होंगे, उस एग्जाम्स का सिलेबस पैटर्न वगैरह और इसका मतलब शुरुआत कैसे करें, हमने उसके लिए सर एक नॉलेज है। এটা আপনারা যে বলেছেন এই যে কোচিং ক্লাসের জন্য আপনাকে কোয়ালিফাই করতে হবে সেটা ঠিকই আছে। এখানে যে সিলেবাসটা আছে যে আইএসসি আইপিএস এর যেমন স্টাডিজ হবে ওই বইটাই কিন্তু আপনাদেরকে পড়তে হবে, বিকজ ইউ হ্যাভ টু কোয়ালিফাই ফর দ্যাট। এটা কিন্তু আপনাদের যেগুলো আপনার প্রিপারেশন করবেন আইএসসি আইপিএস, আপনাদের নিজের সাবজেক্ট কোনটা অপশনাল নেবেন কোনটা কম্পালসারি নেবেন ওই হিসাবে আপনাকে পড়াশোনা করতে হবে। এত ডিফিকাল্ট হয় না, সিন্স ইটস এন এন্ট্রান্স এক্সাম, কিন্তু একটু টাফ তো হবেই। Since this coaching is free and is given by the government, state government, so you will have to qualify, you will have to show that you are capable of entering and getting the free coaching. Okay? कोई भी जब कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हो गवर्नमेंट का, আপনি জানেন কি এটা এখন তো ফ্রি, আপনার ক্ষেত্রে ফ্রি, কিন্তু গভর্নমেন্ট তো অনেক টাকা স্পেন্ড করছে, এটা গভর্নমেন্টের অনেক এক্সপেন্ডিচার থাকে, তাহলে গভর্নমেন্ট চাইছে কি অনলি সিরিয়াস স্টুডেন্টসরা পার্টিসিপেট করবে, ওদের জন্য আপনার একটা স্ক্রিনিং টেস্ট হয়,
that screening test will be of basic general studies. আপনি আপনার যে এনসিইআরটি থাকে ধরুন আপনি 8 থেকে 12 8 থেকে 10 এটা আপনাকে ভালো করে পড়তে হবে। তারপরে আপনার আমি যে প্রথম বললাম কি নিউজ পেপার जनरल स्टडीज तो सब থেকে বেশি তো নিউজ পেপারে থাকে। देन कोई आप बढ़िया वही बात की ऑनलाइन हर टाइप का मटेरियल अवेलेबल है, इवन आपके मंथली जिस्ट भी अवेलेबल है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दृष्टि हो गया, इनसाइट्स आईएएस हो गया, ऐसे खान ग्रुप हो गया, विजन हो गया, फ्रीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप गूगल कीजिए आपको पूरे मिल जाएगा। आप वही जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन कर करके एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। ये एंट्रेंस एग्जाम उस एग्जाम का नहीं है, तैयारी करने के लिए है, तो डेफिनेटली उस लेवल का नहीं होगा, लेकिन आपके बीच में तो कम से कम कंपटीशन होगा ही। ठीक है। Any other questions? अभी इस प्रोग्राम का वोट ऑफ थैंक्स बोलने के लिए मैं मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ। Good afternoon all. First of all, I would like to thank the honored dignitaries on the stage. It was very short notice, खूब छोटा short time में सर को request किया तो ADMR सर तो वहाँ दोस्त करना में मेरे वहाँ सर है, so सर के साथ very easy accessible, बहुत easy access है। सर के रिक्वेस्ट किया, सर ने बोला कि मैं अरेंज कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। So because of him, this all thing was able to be arranged and you were able to get his honorable presence. Or I would also like to thank Praveen sir. He's a very busy person as his sir. So they took out the time. Once you sit for the competition, all आप लोग को समझ में आएगा कि कितनी बिजी है वो ये सर लोग कितने बिजी है। सो इसके लिए इतना टाइम निकाल कर आया है, इसके लिए सर को धन्यवाद बोलूँगी। थैंक यू सो मच सर, प्रवीण सर एंड नितिन सर। Thank you to the students also. Thank you to the students for attending. हम लोग 2 घंटे से सारे बच्चे लोगों को बोलना है, तुम लोग मत जाओ, बैठो, तुम लोगों के लिए टिफिन का बंदोबस्त किया गया है।